So let us again take the definition. So definition is what? Let me write it again because वो lecture आपका end हो गया अभी. So it is your definition 6.85. Page 234. So eigenvalue है ना. So if your A is a square matrix, it may have complex entities है ना. कि कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि अभी इसके अंदर रूट्स निकलेंगे तो रूट्स की जरूरत पड़ेगी. इट मे हैव कॉम्प्लेक्स एंट्रीज. सो इफ स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज ऑफ ऑर्डर n, then the values of lambda such that it satisfies this equation. Ax is equal to lambda x. Means you have A is a matrix and x is a vector. अब x यहाँ पर क्या वेक्टर है? Suppose n by n की मैट्रिक्स है तो x भी आपके पास क्या है? n टपल्स में होगी. So if you can get some lambda which is satisfying this equation. Ax is equal to lambda x, है ना? And this has non-trivial solutions. Non-trivial का मतलब क्या हुआ? कि if you are taking x is equal to 0, तब तो hold हो गई होगा, you know, 0 is equal to 0, and it is true. Yes. But it should has non-trivial solution. यानी कि for x not 0 के लिए it should satisfy. क्योंकि 0 के लिए तो always hold. 0 रख दीजिए आप x को, तो a into 0 is this into 0, it is 0. Okay, so it has non-trivial solutions. Non-trivial का मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x should be not 0. And keep in mind x यहाँ पर x is not a single element. x का मतलब क्या है? It's a n tuples. n tuples है. नहीं x n tuples है. मैट्रिक्स में भी अगर आप लिखेंगे तो you know कि a you will be writing like this. कि a will be n cross n matrix and so on and so on. n1 nn है ना. So x will be what? X will be like this. Column vectors like this. n cross n and n cross 1 n rows and columns. तो इसका प्रोडक्ट इधर क्या है? लैम्डा तो स्केलर है और ये है x1 x2 xn. ठीक है, ये तो आएगा. सॉल्व करके देखिए. n सेम n cross 1. So A is a matrix n cross n square matrix. X is a column vector. Then this should has non-trivial solution. Then the values of lambda such that this has non-trivial solution, they are called the eigenvalues of A. Okay, वो सारी lambda की values which is satisfying this Ax is equal to lambda x such that x is not 0. और if suppose you get, अब यहाँ पर कितने लैम्डा होंगे? You can get several lambdas. कितने लैम्डा होंगे? ये डिपेंड करेगा आपके A के ऊपर, है ना. क्योंकि अभी I will show you कि basically when I will solve this thing, it will give you a polynomial of degree n. How? देखिए, अभी पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लूँ. Ax is equal to lambda x. So the values of lambda they called eigenvalues, and the non-zero vectors and the non-zero vectors x for which this equation holds. अगर मैं से 1 कह दूं, for which 1 holds, ये क्या कहलाते हैं? Eigenvectors are called the eigenvectors corresponding to the
आइगन वैल्यू, लाइक, ठीक है। अब इसे देखो थोड़ा सा और डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, basically what you have definition says that if you have a matrix which is square matrix, I will multiply by some vector x, so it should equal to lambda x for some lambda. अगर ऐसा हो जाता है then we say lambda is a eigen value, है ना, provided x should be not zero. I am interested in non trivial solution, और इन lambda corresponding जो ये x आ रहे हैं they called eigen vectors, ठीक है। देखो इसको I can write, इसी डेफिनेशन को I can write in determinant form. So you have ax is equal to lambda x. I can write ax minus lambda x is equal to 0. यहाँ पे keep in mind a आपका मैट्रिक्स है, lambda x सिंपल स्केलर है, तो जो lambda x है this I can write ax minus lambda ix is equal to 0. ओके, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि i इज अ मैट x क्या आपके पास कॉलम है, तो जब आप लैम्डा की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या है आपके पास, ये तो स्केलर है, दिस इज अ वेक्टर इन अ कॉलम वेक्टर, दिस आई कैन राइट लैम्डा इनटू आई एक्स, इन फैक्ट क्या इज द आइडेंटिटी n क्रॉस n का, है ना, और दिस आई कैन राइट a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू, ओके, यस सर, ओके, x कॉमन ले लिया हमने, जब आप x कॉमन लेंगे तो a minus lambda does not make any sense. You cannot subtract some matrix minus lambda. क्या होता है बेसिकली lambda into i, यही तो इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए i आया है। Now this is equal to 0. अब अगर आप a minus lambda i, suppose for a moment I am taking a is a 3/3 matrix, suppose just for a moment, तो what will happen, a क्या होगा आपके पास बेसिकली alpha 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, and what you are doing, you are taking minus lambda I क्या है, this is your I, है ना, ये तो कर रहे हैं आप, and this is equal to or into x, this into x, x is what, x1 x2 x3, है ना, this equal to 0, ये तो करा आपने। अब ये I can subtract by component wise, so this will be what, yeah I am taking it particular, so alpha 1 1 minus lambda alpha 1 2 alpha 1 3 alpha 2 1 alpha 2 और alpha 3 1 alpha 3 2 alpha 2 3 आएगा सर ऊपर 0 के 3 1 3 2 2 3, and this n into x1 x2 x3, this equal to 0. Okay, so you will be getting this. Now this is basically system of linear equation. ये क्या है आपके पास, सिस्टम इक्वेशन ही तो है, 3 इक्वेशन है, 1 2 3, ये तो होगा, इस पूरे के मल्टीप्लाई इस पे करेंगे आप, एक इक्वेशन मिलेगी, दूसरी करेंगे 3, so this is a system of linear equation, system of 3 linear equation. Now the point I want that this should have non trivial solution, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, ये जो आपका सिस्टम इक्वेशन है, नाउ such a system has a non-trivial solution if and only, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि डिटरमिनेंट क्या होनी चाहिए, ये आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये क्या है, इट इज नाउ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना, ये आपके पास b होगी सपोज न्यू, तो यू हैव bx इज इक्वल टू 0, तो क्या बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ b शुड बी 0 for a non-trivial solution. So this system has a non-trivial solution if and only if determinant of coefficient matrix alpha 1 1 alpha 1 2 alpha 1 3 alpha 2 1 alpha 2 minus alpha 2 3 alpha 3 1
alpha 3 to alpha 3 minus lambda दिस इज इक्वल टू 0, है ना, ये हमने Zero. पीछे डिस्कस किया. तो इट मींस व्हाट, नाउ यू कैन सी कि इफ आई वांट आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू को मैंने सॉल्व किया, और आइगन वैल्यू क्या था कि ऐसी वैल्यू जो डिटरमिन जो आपको नॉन ट्रिवियल दे. तो नॉन ट्रिवियल कब देगी, जब हमारे पास ये आ जाए. अब आप इसको अगर सॉल्व करें, देखिए, तो यू विल सी दैट हियर यू विल बी गेटिंग 3 डिग्री इक्वेशन, थर्ड डिग्री इक्वेशन इन लैम्डा, यू कैन सी हियर, Yes. बिकॉज, है ना. सो दिस, अगर ये क्वेश्चन 2 है, तो यू कैन सी दैट इफ वी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, expanding the determinant Determinant. 2, because alpha 1 alpha 2 ये तो आपके पास नोन स्केलर्स हैं, लैम्डा नोन्स हैं. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यू विल बी गेटिंग एन इक्वेशन ऑफ Yes. किस ऑफ द थर्ड डिग्री इन लैम्डा, Yes, sir. है ना. देखिए, क्योंकि मैं 3/3 का लिया, एन लेंगे तो एन डिग्री हो जाता है. ओके, Yes. Yes, sir. now because I have taken alphas are complex, possible है, complex भी possibility है. तो it means what, कि it will have exactly 3 roots since are scalars. scalars का मतलब जो एंट्रीज हैं, ये अल्फाज है ना, आर कॉम्प्लेक्स, है ना. इक्वेशन Yes. 2 हैज 3 रूट्स, 3 रूट्स इसके आएंगे, है ना. मतलब 3 रूट्स का ये कि रिपीटेड भी हो सकते हैं, बट 3 से कम नहीं आएंगे. होता क्या एक्चुअली, अगर आपके पास पॉलिनॉमियल कुछ इस टाइप की आ जाए, मान लो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सपोज करो. अब यहाँ पर अगर आप ओवर रियल डील कर रहे हैं तो आप कहेंगे इट हैज नो रूट्स, क्योंकि यहाँ पर तो Yes. लैम्डा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आई. Plus minus. लेकिन अगर आप ओवर कॉम्प्लेक्स डील करते हैं तो एवरी पॉलिनोमियल ऑलवेज हैज रूट्स, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, दीज आर द रूट्स, है ना. तो दैट्स व्हाई आई एम Yes, सेइंग sir. कि व्हेन यू विल सॉल्व इट, और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब भी रूट्स हमेशा पॉसिबल होंगे. ओके, तो इसलिए लिखा क्योंकि हमारे स्केलर्स sir. कॉम्प्लेक्स हैं, तो इक्वेशन 2 के 3 रूट्स तो होंगे डेफिनेटली. अब वो रिपीटेड हो सकते हैं या डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो ये जो 3 डिफरेंट रूट्स आएंगे, इसको हम क्या कह देंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3. तो यही जो रूट्स हैं आपके, है ना. सो दीज 3 रूट्स से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, दे आर कॉल्ड द, क्या है ये, आइगन वैल्यूज. तो शॉर्ट में मैं ई ऐसे लिख दिया करूँगा, आइगन वैल्यूज को मैं ऐसे लिखूंगा आगे से, आइगन वैल्यूज ऑफ ए. क्लियर, क्योंकि ये जो आपने Yes, किया है sir. बेसिकली ये यही किया जो मैंने यहाँ लिखा था. इट वाज थ्योरेटिकली हियर कि x इज इक्वल टू लैम्डा x में वो सारे लैम्डा विच इज गिविंग यू अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो इसको अगर हमने सॉल्व किया, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, है ना, इसे इधर ले गए, तो यहाँ से आपके पास ये बात समझ में आ गई बाय यूजिंग दिस थ्योरम कि अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लूँ, है ना, बाय कंसीडरिंग 0, तो जो रूट्स आएंगे दैट विल गिव यू द आइगन वैल्यूज. इज इट क्लियर. Yes, sir. और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ऑफ x आएंगी वो आपकी कराएंगे आइगन वेक्टर. सो अगर अल्फा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है यहाँ पे, तो ये 3 हो गया. अगर ये n बाई n की होती तो एटमोस्ट n हो जाते, है ना. तो ईच वेक्टर, इसको हम जो सेट ऑफ ऑल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज गिवन बाय ई लैम्डा, इसको हम ई लैम्डा से डिनोट करेंगे. द सेट ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन मेन थी 1, है ना, इस 1 की, ऑफ इक्वेशन 1
this is given for a given lambda. For a given lambda is denoted by E lambda. ओके, इस हम E lambda से नोट करेंगे. Am I audible? Yes, sir. तो हम E lambda से नोट करेंगे. जैसे आपके पास अगर 3 रूट्स आए हैं तो वी विल राइट E lambda 1, E lambda 2, E lambda 3, है ना. ये Yes, sir. तो इसे हम सेट कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस. तो ये एक सेट होगा, है ना. Yes. तो सेट ऑफ ऑल दीज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मतलब जो हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे. तो करस्पॉन्डिंग टू ईच वेक्टर बिलोंगिंग टू, अब यहाँ पर हर एक वेक्टर आएगा आपके पास जो बिलोंग करेगा. ईच वेक्टर बिलोंगिंग टू लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वेक्टर. ठीक है, उसको हम आइगन वेक्टर कहेंगे. So corresponding to each lambda I, we have, so these are the basically set of eigenvectors. This E lambda is called set of eigenvectors. To the eigenvalue lambda. ठीक है. अब यहाँ पे जो डिटरमिनेंट आपने सॉल्व किया है इसको हम कहते हैं, ये जो क्वेश्चन निकल के आई थी डिटरमिनेंट पे जो आपने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन निकल के आएगी. इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इक्वेशन 2 ये क्या थी, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, है ना. इट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए. और इसके रूट्स ही को हम आइगन वैल्यूज भी कहते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. आइगन वैल्यूज और आर आल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं. ठीक है, CHARACTERIS, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स. ठीक है, ये भी कहते हैं. तो ये बेसिकली क्या है, द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द आइगन वैल्यू. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब क्योंकि अगर से पॉलिनोमियल किसकी है, n डिग्री की है, तो देयर कैन बी एट मोस्ट n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, है ना. डिस्टिंक्ट कितनी हो सकती है, एट मोस्ट n. टोटल तो n रूट्स होंगे, लेकिन वो रिपीटेड भी हो सकते हैं. जैसे 3 में से 2 रिपीट हो जाए आपके पास, है ना. अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो एटमोस्ट कितने होंगे, 3 डिस्टिंक्ट या n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. जैसे एक प्रॉब्लम कर देते हैं वेरी क्विकली. टाइम कम है क्योंकि टाइम वही शो कर रहा है जो बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था. आपको ज्वाइन अगेन हुआ है लेकिन स्टिल इट इज शोइंग द टाइम सेम. चलिए कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो वही क्या है. सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स 3/3, 1 -1 2 0 1 0 1 2 1. एक ये मैट्रिक्स है. आई वांट टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. So one thing is clear कि whenever we are talking about eigen values, eigen vectors, we are taking always a square matrix, है ना. We are always Yes, taking sir. square matrix. Square matrix की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि determinant निकालना होता है. Determinant is possible only for square matrix. So for the eigen value, I will take the characteristic equation. क्या होती है वो, determinant of a minus lambda I. This is called characteristic equation. So 1 minus lambda minus 1 2 0 1 minus lambda 0 1 2 1 2 1 minus lambda is equal to 0. ठीक है. अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे मैं कह रहा था ना 3/3 क्यों आएगी. अब आप एक्सपेंड करेंगे. सपोज आई एम एक्सपेंडिंग विद फर्स्ट रो, तो फर्स्ट एंट्री इज 1 minus lambda, हाइडिंग द रो एंड कॉलम. क्या बचा आपके पास, 1 minus So 1 multiplying lambda this with square. this whole square minus
2 into 0 0. है ना. सेकेंड टर्म आई एम टेकिंग दिस, तो -0 ये तो सब 0 हो गया एंड +1. सो हेडिंग थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया, अभी से हेड किया तो आप 0 है ना एंड माइनस ट्वाइस. ठीक है, तो मैंने एक्सपेंड कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम. Oh yeah, okay sir. ठीक है, तो नाउ व्हाट यू विल बी गेटिंग 1 माइनस लैम्डा होल क्यूब एंड माइनस 0 2 टाइम्स plus 2 lambda. 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. ये तो आएगा भाई. Yes यहाँ पे sir. से आप सॉल्व कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री की क्वेश्चन आएगी, देखिए वही तो आ रही है. थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल Yes sir. लैम्डा, इसको यू कैन सॉल्व. 1 माइनस लैम्डा आई कैन टेक आउटसाइड, तो क्या बचा 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 2 is equal to 0. When you will solve it, so it is how much? Lambda 1 minus equal to lambda, 1. open it, lambda square plus 1 minus 2 lambda minus 2 is equal to 0. So how much? 1 minus lambda, Minus lambda lambda square lambda square minus 2 lambda minus 1 is and equal to 0. तो यहाँ पर रूट्स क्या आएंगे आपके पास, देखिए एक तो 1 आएगा और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कमिंग 1 plus root 2 and 1 माइनस रूट, है ना. धराचार्य फॉर्मूला Yes, sir. लगा सकते हो ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है. सो यू गॉट yes sir. 3 रूट्स. क्या क्या है, लैम्डा 1 is 1, lambda 2 is 1 plus root 1 2 and lambda 3 is 1. and As I 1 told you, minus root. okay, you will be getting at most 3 distinct roots. These are the eigenvalues. So eigenvalues are this. 3 eigenvalues are there. Now the point is, what about eigen vector? Vector. तो आइगन वेक्टर के लिए क्या बताया था मैंने कि आई विल सॉल्व नाउ दिस सिस्टम. ax is equal to lambda x था, तो फॉर अब 3 लैम्डास हैं, फॉर लैम्डा 1 is equal to 1 you will be having ax is equal to 1x. इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे. तो ax का मतलब क्या था 1 minus 1 2 0 1 0 1 2 1 and x1 x2 Nice. x3 is equal to, अब 1 तो 1 is 1, तो x1 x2. X3. यहाँ पे आपको सिस्टम इक्वेशन मिली ना, देखिए क्या Yes, मिला sir. आपके पास. तो यू हैव, Compare करना पड़ेगा. तो करो क्या आ रहा है x1 माइनस x2